Have you seen the new evaluation scheme? There have been some changes, no change in the moot court marking, which is 15, 15, 15 for memorial, 15 for oral. But in the mock trial, the marks have increased from 5 to 10 for the 3 activities. The cross-examination, examination chief, and arguments, 10 marks each, which were 5 marks each earlier. And we have shifted client interviewing as part of the internship component, because you were supposed to have observed interview, etc., and case files, etc., in the chambers. So we have created certain slots to fulfill the requirement of internship, which is not possible due to the COVID-19 scenario that we are in. So in that one, a new component which has come in is case comment. The old component are still there, the 2 which were there, client interviewing and client counseling. Client counseling and client interviewing as one, worth 5. And then the form that you filled up. There are 2 forms which need to be filled up, and be very careful about this. So when an interview happens, we have a client and we have a lawyer. So the lawyer, in the capacity of a lawyer, has to fill up the form, which is the interview, which is the, what is the chart called? Questionnaire for lawyers, interviewers. So that is the chart you have to fill up as in your capacity as a lawyer. So you have to say before you go for the interview, you have to fill up first part. And then after the interview, you have to reflect and say what all you have experienced, or what have you, how have you done your self-assessment on that, reflecting on the interview that you conducted as the lawyer. Then there is another form which says case planning. You've all done that exercise already. So the case planning chart, the lawyers will not fill up for the interview they have done. The case planning chart you will fill up in the capacity as the client. So you have, some of you have done this earlier in a sense that you wrote down that this is what I will say, this is what the lawyer will say, this is what I expect the lawyer to do. But that was very simplistic. Now what we want you to do is that suppose the problem that you're presenting to the other side, to the lawyer, if you yourself were the lawyer in that case, how would you deal with that problem? What will be your case planning? So case planning chart, suppose the interview has taken place. So the client will fill up on that problem which he has presented, the case planning chart. And the lawyer will present his experience of the interview. He doesn't have to do the case planning chart on the problem he's dealing with. Is that clear? So there are 2 charts. Everybody has to fill up 2 because all of you will be lawyers and all of you will also be clients. So in your capacity as a client, you have to fill up case planning chart thinking that you are the lawyer. While in the activity, you are the client. But for exam purposes, consider yourself as the lawyer in the same problem which you have discussed with another lawyer. So forget about that lawyer, what that lawyer has done or not done. You're not reflecting on what the student lawyer advised you or what he did in that. You don't have to do that. You have to fill up the form as a lawyer in the problem which you yourself has created. All right. So the lawyer has to, so everybody will be, when they become a lawyer, they have to fill up the questionnaire for interviewer chart. And as a client, you have to fill up the chart for the problem you yourself has written down. Anybody who has a confusion or need clarification on this? I have confusion, ma'am. Please, ma'am. What confusion? कौन बोला? किसको? अंकित, देखो हर इंटरव्यू एग्जाम जो ये हमारा जो एग्जाम होगा ओरल वाला, उसमें एक स्टूडेंट 2 राउंड्स होंगे. आधी क्लास एक स्टेज में क्लाइंट बनेगी और आधी क्लास लॉयर बनेगी.
फिर रोल स्विच हो जाएगा, जो क्लाइंट थे वो लॉयर बन जाएंगे और जो लॉयर थे वो क्लाइंट बन जाएंगे। एक्सरसाइज ऐसे होनी है ना? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल है कि जो आपने ओरल परफॉर्मेंस की है वो आप रिकॉर्ड करोगे, वो हम देखेंगे, उसके 5 नंबर हम लगाएंगे ओरल परफॉर्मेंस आप लोगों की देख करके। उसके बाद में बचे 5 नंबर। ठीक है मैम। जो 10 नंबर का एग्जाम है क्लाइंट इंटरव्यू, जिसका 5 नंबर का ओरल है, 5 नंबर का रिटन है। तो 5 नंबर के ओरल में आपने रिकॉर्डिंग कर दी और हमें भेज दिया। मेरे पास 78 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 78 रिकॉर्डिंग्स आनी चाहिए। उसमें 5 नंबर की हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद बचे 5 नंबर। ओके मैम। उस वाले में आप वो वाला फॉर्म भरोगे जिसका टाइटल है क्वेश्चनर फॉर लॉयर्स इन द कैपेसिटी एज ए लॉयर। जैसे लॉयर ने जो भी आपके पास कोई फैमिली लॉ का मैटर आया, आपने एडवाइस दे दी, जो भी कुछ किया, तो जो आपने किया है एज अ लॉयर, जो एक्चुअल इंटरव्यू में किया था, उसके ऊपर आपने वो क्वेश्चनर भरना है। क्वेश्चनर दोबारा भेज देंगे, पहले ओके मैम। दोबारा से भेज देंगे। तो जो क्वेश्चनर वाला जो भरा जाएगा वो 5 नंबर का जवाब है आपका, जिसमें आपने पहला पार्ट भरना है इंटरव्यू शुरू करने से पहले, तो दूसरा पार्ट भरना है इंटरव्यू करने के बाद में। ठीक है, वो 10 नंबर फिर इंटरव्यू ठीक है मैम। हो गए। फिर एक और 10 नंबर है जिसमें कि हम आपको कह रहे हैं स्ट्रैटेजी प्लानिंग, आपका जो केस प्लानिंग चार्ट आपने भर के देना है हमें, वो 10 नंबर का है। तो केस प्लानिंग चार्ट में प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए ना। तो जो आपने प्रॉब्लम, हर एक बच्चे ने प्रॉब्लम वो की है, फ्रेम की है ना, अंकित ने भी की है। यस मैम। जो आपने प्रॉब्लम फॉर्म की है उसका जवाब अब दूसरा नहीं ढूंढेगा, प्लानिंग को दूसरा नहीं करेगा, आपने खुद ही करनी है। तो जो प्रॉब्लम आपने फ्रेम की है, आप सोचो कि ये प्रॉब्लम आपके पास आपका क्लाइंट लेके आया है और उसकी आप कैसे ओके मैम। प्लानिंग करोगे, वो फॉर्म आपने, जो केस प्लानिंग चार्ट है उसमें वो भरना है। ठीक है मैम, ये मुझे पहले ही भर के रख लेना ना मैम, केस प्लानिंग चार्ट जो हमें पहले कर लें हम वो, क्योंकि पहले भी केस कर तो हमें पता ही है। पहले भी कर सकते हो, इंटरव्यू के बाद भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है कब करते हो। पर ठीक है मैम। जो आपने प्रॉब्लम फ्रेम की है उसी पे आपने प्लानिंग चार्ट बनाना है। और बेहतर रहेगा कि आप लोग ना ये थोड़ा वैसे तो मर्जी है, क्योंकि जो आपका स्टूडेंट फेलो होगा ना, अगर आप पहले रिसर्च खुद कर रखे हो तो आप कहोगे आपने ये नहीं पूछा, आपने वो नहीं पूछा। पर मर्जी, आप पहले भर सकते हो वो केस प्लानिंग चार्ट, आप अपना खुद बना सकते हो, किसी भी स्टेज में बना सकते हो। डेडलाइन है, उससे पहले पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैं वहाँ पे असाइनमेंट डाल दूंगी आपके डैशबोर्ड में। आपने जो भी सबमिशन भेजने हैं ना, आप जो अब आपने लिंक भेजोगे इंटरव्यू के, आपने जितने सबमिशन एग्जाम के करोगे, वो सारे आपने डैशबोर्ड में डालने हैं, जिससे वो हमें ऑटोमेटिकली बताता जाएगा किस किस का आ गया, किस किस ने नहीं जमा किया। ईमेल पे कोई नहीं, ईमेल में किसी ने नहीं भेजना है। जो क्लास वर्क का जो मैं उसमें असाइनमेंट बनाऊंगी, उस असाइनमेंट पे आपने वो भेजने हैं अपने जवाब। तो चाहे वो आपके केस कमेंट है, चाहे वो केस प्लानिंग चार्ट है, चाहे वो इंटरव्यू क्वेश्चनर फॉर इंटरव्यूअर है, चाहे मेमोरियल है, ये 4-5 चीजें हैं आपकी रिटर्न में, ये सब आपने डैशबोर्ड पे जमा करनी है। वो आपका जमा करने का जगह है। तो मैं आपका असाइनमेंट बना दूंगी और जिसका होता जाएगा वो वहां पे डालता जाएगा। अब आप देख लीजिए, आप लोगों के स्टैगर्ड है। कुछ लोगों का इंटरव्यू पहले शायद मूड कोर्ट होएगा, बाद में ना पहले मॉक ट्रायल होगा, फिर बाद में मूड कोर्ट होएगा। तो आप लोग जिन लोगों का मूड कोर्ट देर से है, वो पहले मॉक ट्रायल की तैयारी कर लें। तो अपना प्लानिंग खुद कर लो कि कैसे कैसे आप तैयारी करोगे, क्योंकि आपके ये ऑलमोस्ट एक दिन का बीच में गैप होएगा मॉक ट्रायल और मूड कोर्ट में। तो आपको तैयारी अभी से कर लेनी शुरू कर देनी है। तो अगर आपका मॉक ट्रायल थोड़ा देर से है तो पहले मोड कोर्ट की तैयारी कर लो। अगर आपका मोड कोर्ट देर में है और पता नहीं अब, क्योंकि उनके ग्रुपिंग डिफरेंट तरीके से हुई है। मोड कोर्ट की ग्रुपिंग आपकी स्ट्रेट अवे रोल नंबर से है, और मॉक ट्रायल की तो आप लोगों ने ग्रुप्स बनाए और कुछ ग्रुप्स मैंने बनाए हैं, जिन्होंने ग्रुप्स नहीं बनाए वो चांस हो सकता है कि आगे पीछे कहाँ किसका पड़ेगा, दैट वी डू नॉट नो। आप लोग प्लान कर लो।
सारा एग्जाम हमारा 7 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। 7 दिसंबर का मतलब आप लोगों की एक्टिविटी बचेगी जो लास्ट सबमिशन केस कमेंट का है। केस कमेंट के लिए आप लोगों ने कोई सा भी केस, इतने सारे आपने कोर्सेज पढ़े हैं ना, अब तक 20 कोर्स पढ़ चुके हो, अभी भी 4 कोर्सेज के अलावा और पढ़ रहे हो, सब में केसेस थे। कोई सा भी एक केस अपने केस में से निकाल सकते हो जो आपका फेवरेट केस हो, मगर रेप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। 2 बच्चे सेम केस पे करेंगे तो अमित का काम फिर से बढ़ गया है। आप अमित इनको ना, जो आपको रजिस्टर भेजा है, जो जो केस भेजता जाएगा नाम आपको, आप उसके नाम के आगे लिखते जाना। ओके मैम। तो और कोई चाहे अपना फॉर्म कैसे करोगे मुझे नहीं पता, कि बाकी बच्चे वही केस दोबारा ना ऑप्ट कर ले। कोई किसका दोबारा, जो फर्स्ट का फर्स्ट सब में हो जाएगा, जिसने पहले भेज दिया, जो केस जिसने रिजर्व कर लिया वो उसका केस रिजर्व हो गया। केस कमेंट में हम जो आपको एक्सपेक्ट करते हैं, मैं बहुत फाइनल डिटेल्स आपको कल बता दूंगी, तो आज शाम को हमारी मीटिंग है। हम केस कमेंट अबाउट 1000 वर्ड्स का चाह रहे हैं आपसे। और केस कमेंट में जैसे हमने कल बात की थी कि हिस्से होते हैं केसेस में, उसमें फैक्ट्स होते हैं, प्रोसीजर हिस्ट्री, कंटेंशंस, एविडेंस भी होता है, इश्यूज क्या है, डिसीजन क्या है, रीजनिंग ऑफ द कोर्ट क्या है, ये सब केस में लिखा रहता है। तो एक तो आपने उसके केस की समरी बनानी है, इनमें से डिसाइड करके कि क्या क्या आपने हिस्से लेने हैं। और करीब 100-150 शब्द जो है वो आप अपनी तरफ से लिखोगे कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो, ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने क्यों चूज किया ये केस, इसमें मुझे ये पसंद था, या ये केस ने लाइन को आगे बढ़ाया, उस एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाया, या उसने एक ब्लॉक कर दिया, या उसमें कंटेंशंस बहुत अच्छी थी। आप सोच सकते हो ना, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो उसमें। आपके जो हम कमेंट करें ना कि आप कमेंट करोगे उसके ऊपर, तो 100 से 150 शब्द आपने अपने लिखने हैं, आपकी सोच क्या उस केस के बारे में। तो बाकी तो आपने उसमें से समरी बनानी है केस में से, जो केस चूज किया है। और कमेंट आपके 100 से 150 वर्ड कम से कम होने चाहिए। तो उसमें आप ना देख सकते हो कि अच्छा, इस केस को जब से शुरू हुआ तब से तब तक खत्म हुआ कितने साल लगे। उसमें डेट ऑफ इंसिडेंट, जैसे क्रिमिनल केस में लिखा था कौन सी तारीख को ऑफेंस हुआ, फाइनल जजमेंट कब आया, तो उस तरह से कमेंट कर सकते हो कि जस्टिस में कितना लगा। पनिशमेंट देख सकते हो कि आप अप्रोप्रिएट थी, नहीं थी, ज्यादा थी। जो विक्टिम थे उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो केस, जिसमें विक्टिम को कुछ मिला कि नहीं मिला। कई दफा होता है कि बड़े बड़े शब्द लिखे होते हैं मगर विक्टिम को कुछ नहीं मिला होता अल्टीमेटली। सारी बातें विक्टिम की लिखी रहती है, रेप केसेस में काफी है, तो विक्टिम के लिए लिखा रहता है, पर अल्टीमेटली ना तो उसको कंपनसेशन दी और उसके साथ में एज्यूम कर ले कुछ चीजें। तो आप सोच सकते हो कि क्या कमेंट आप क्या जिस वजह से आपने केस चूज किया है, नेचुरली वो आपके कमेंट में आएगा। तो वो मैम ये मैटर करेगा, मैम ये मैटर करेगा कि कोई इजी केस है या डिफिकल्ट केस है, हमने नहीं कौन सा नहीं, हमें नहीं डिफिकल्ट। चाहिए कि आप 1500 का पेज का केस लोगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे केस ले सकते हो, मगर आपका केस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप 1000 शब्द लिख सको। क्योंकि अगर वो पेज 1.5 पेज का केस है तो आप 1000 शब्द कैसे लिखोगे। तो इसलिए अगर 7-8 पेज का केस ले लेते हो कोई सा, तो कमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। एवरेज में ऐसा सा केस चुन लो। आपको केस मटेरियल में कोई केस पसंद नहीं है, कोई दूसरा भी करना चाहो वो भी कर सकते हो, पर आपके थोड़ी जिंदगी आसान हो जाए इसलिए हमने तो कहा है कि आप केस मटेरियल में से केस चुन सकते हो। कोई सा भी जो आपने कोर्स आज तक पढ़ा है उसमें कोई सा भी केस आपको पसंद है, उस केस पे आप केस कमेंट लिख सकते हो। तो और मैम एक क्वेश्चन था। मैम जो क्लाइंट इंटरव्यू एक्टिविटी होनी थी पहले, उसमें यही दिक्कत आई थी कि उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो मैम अब कैसे हमको फॉलो करना है वो? हाँ नहीं, उसमें ना या तो ओरल रिकॉर्डिंग कर लो, चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। अच्छा मैम केस कमेंट में जब जो जजमेंट आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जजमेंट के व्यू को भी अलग तरीके से देखते हैं, तो क्या हम जब केस कमेंट करेंगे तो सिर्फ हम कंटेंशन के ऊपर ही वो करेंगे, या जो जजमेंट का दे रखा है किसी कोर्ट ने, अगर हाँ हमें लगता है कि ये जजमेंट बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अपने कमेंट सर। जजमेंट पे आपने देना कि देखो ये बहुत बारीकी से अच्छी उसने आर्ग्यूमेंट दिया, वो भी कर सकते हो। आप कहते हो कि नहीं ये जजमेंट की गलत है या अच्छा है, या इसने बहुत एक अच्छे तरीके से एनालाइज किया, जो भी कहना चाहते हो, तो आप जजमेंट से डिसएग्री भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ओके
आपको सुप्रीम कोर्ट की हाँ में हाँ मिलाने की, हाई कोर्ट में हाँ में हाँ मिलानी है। कमेंट का मतलब ही है कि आपके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट जजमेंट था, क्या इम्पोर्टेंट है थैंक यू मैम। आपकी लर्निंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट था, जिसमें बहुत अच्छे से उन्होंने सेक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, जो हमें टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया। तो ये जजमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एज अ मटेरियल टूल है, एज अ टीचिंग मटेरियल है, एज अ टीचिंग टूल है। तो आप सोच सकते हो कि आपका क्या आपको उसमें अपील करता है, जो जो आप केस खुद चूज कर रहे हो। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यह है कि अगले 2 से 3 दिन में, इस वीकेंड तक में, मंडे तक हमारे पास लिस्ट आ जानी चाहिए कि आप किन किन केसेस पे कमेंट लिख रहे हो। तो अगर आप पहले ओके मैम। जितना जल्दी भेज दोगे तो आपको मनमर्जी का केस मिल जाएगा, नहीं तो पता चला कि दूसरे बच्चे ने वो केस ले लिया, फिर आपको फिर से ढूंढना पड़ा। तो जितना जल्दी भेजोगे चूज करके केस, उतना आपको आसानी से अपनी मर्जी का केस मिल जाएगा। तो और कोई सवाल है? अच्छा, एक मेरा और सवाल है। हमारा जो 10 नंबर पहले अटेंडेंस के थे, तो नेचुरली क्योंकि अटेंडेंस का तो इशू चल रहा है और बार काउंसिल से हमें पता नहीं है कि वो कितना एनफोर्स करेंगे नहीं करेंगे, पर हम इन एनी केस जो हमारे 10 नंबर थे, मार्क्स थे, वो तो हम नहीं दे सकते हैं अटेंडेंस के बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमारी भी अटेंडेंस भी बहुत रेगुलरली ये सिस्टम पकड़ता नहीं है। तो उस वजह से हमने सबने फैसला किया 10 नंबर अटेंडेंस के नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमने कुछ काम करना है, तो हमने असाइनमेंट लिखा है। तो आप कुछ और लिख के देना चाहोगे उसमें, कि आप एक क्विज लेना चाहोगे, ऑनलाइन क्विज करा देंगे, 10 मिनट में पूरा निपट जाएगा, 20 सवाल पूछ लेंगे, दो मैम मैम क्विज हाँ जी। मैम माय व्यू मैम मैम मेरे व्यू से कोई भी किसी भी लॉ पे वो लाइक जैसे कोई पेपर लिखते हैं या फिर उस पे जैसे कमेंट का था किसी लॉ को एनालाइज करते हो असाइनमेंट बना सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का व्यू अलग अलग हो सकता है। रिसर्च पेपर की तरह मैम, रिसर्च पेपर या किसी एक टॉपिक पे जो सभी टॉपिक असाइनमेंट मैम। नहीं, मैं भी तो आपको व्यू ले रही हूँ, मैं तो मीटिंग में डिसाइड होगा कि मैम उसमें क्या करना है। तो मैंने कहा जब आपको भी जायजा ले लूं कि आप लोगों का क्या प्रेफरेंस है। मगर ये मटेरियल, इसमें भी बहुत आसान क्विज ऐसा जो हमारा मटेरियल है ना, केस मटेरियल, उस पे ही बनेगा, उससे ज्यादा कहीं नहीं जाना है। अगर केस मटेरियल पढ़ लिया तो क्विज आप जवाब दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्विज होएगा। क्विज मैम क्विज करा लो मैम। मैम मूड वैसे ही बना रहे हम लोग, मैम रिसर्च पे वैसे ही चल रहा है मैम, असाइनमेंट मैम। केस कमेंट तो एक लिख ही रहे हो ना आप लोग। तो वैसे मुझे पता नहीं, मैं आपको कल बता दूंगी कि इसका फाइनल क्या हुआ है। बाकी टीचर्स ने अपनी क्लासेस में बात करके फाइनल डिसीजन हम लोग शाम को लेंगे आज। तो वो मैं आपको कल बता दूंगी असाइनमेंट के उसमें, क्योंकि है ना, होना वो रिटर्न है, उसमें हम रिटर्न में आप लोगों से क्या कराएंगे, वो अभी हम शाम को बात करके कल आपको बता देंगे। मैम एमसीक्यू होगा? हाँ मैम जी। एमसीक्यू होगा तो कैसे होगा? लाइक जो कंपटीशन टाइप का होगा कि कुछ बच्चे हैं जो सबसे पहले दे रहा है या फिर एक फॉर्म ना पूरा ना ना, क्वेश्चन रहेगा? जैसे हम एक सवाल देंगे, आपको बस 10 या 15 सेकंड मिलेंगे, उसमें जवाब दे दो, वो सवाल खत्म, ओके फिर नेक्स्ट सवाल, ऐसे होगा। ओके हमारी एक टीचर ने हमारी क्लास ली थी, तो उसने हमारा क्विज कराया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो क्विज करने में। तो मतलब इंटरेस्टिंग था कि उसमें जैसे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इकट्ठा नहीं दिखेगा, एक एक सवाल आता जाएगा, आप उसका जवाब देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जितने नंबर ठीक आ जाए ठीक आ जाए। मैम ऑप्शन होगा ना मैम? किस बात का? हाँ, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको एक चूज करनी है, और केस मटेरियल में से आएगा, इतना तो सर्टेन। अगर हमने क्विज किया तो केस मटेरियल में से आएगा, आपको दूसरी किताब नहीं पढ़नी, उसके लिए सिर्फ केस मटेरियल पढ़ना है। मैम अगर जिसमें ऐसा हो किसी का नेटवर्क इशू हो गया और उसका फिर तो हम फिर उसको, एक भी नहीं आ पाएगा। जिसका नहीं होगा ना, नेटवर्क में नहीं होगा, उनका कुछ होगा, वो हम लिखेंगे, हमका दोबारा से आप फिर से करा देंगे दूसरा। हमें तो हम 3-4 क्विज सेट कर लेंगे, तो एक में नहीं हुआ तो दूसरा दे देंगे। ओके मैम। क्योंकि नेटवर्क वो तो हमें देखना ही पड़ेगा कि अगर नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, उस टाइम में वो नहीं जवाब दे पा रहा है, तो उसमें तो हमें बेनिफिट देना ही पड़ेगा। देखते हैं बाकी लोगों का क्या मैम व्यू बनता है। मुझे बहुत मैम अच्छा जैसे मजा 4 आया। ऑप्शंस है, हाँ जी। मैम जैसे 4 ऑप्शंस है तो ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि व्हाई डू यू थिंक दिस? चारों में से एक सेलेक्ट कर लिया तो व्हाई तो नहीं पूछा जाएगा ना? नहीं, उसके बाद नहीं पूछेंगे भाई। ठीक है मैम। हाँ,
नहीं मुझे नहीं पता मेरे बाकी कलीग्स क्या सेट करते हैं, मैं तो मैम ये पूरा मूट कोर्ट वाले केस मटेरियल से आएगा। बाकी लोग शायद नहीं है उतना। हाँ जी मैम मूट कोर्ट वाले केस मटेरियल से ही होगा ना क्विज? हाँ हाँ मूट कोर्ट वाले उसमें से। मैम चीजें है, असाइनमेंट ले लीजिए। ऐसा करते हैं कि एक ना इसमें वो आपकी राय ले लेते हैं लिखत में, जिसको असाइनमेंट देने का प्रेफरेंस है वो ए लिख दें, और जिनको क्विज की प्रेफरेंस है वो क्यू लिख दें। देखते हैं जस्ट एज अ सेंस ऑफ कि आप लोगों का क्या आता है। I'll share it with the rest of the group and let's see बाकी ग्रुप्स में क्या हुआ है। It seems assignment won by a great margin. ठीक है देख लेते हैं। हमें तो एग्जाम तो आपने देना, हमने थोड़ी देना है। जो आप लोगों को सही लगता है वो सही है। मैडम इसमें लिखने में लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है ना, किसी भी लैंग्वेज में? ये देख लो, ये देख लो असाइनमेंट में अगर कॉपी कर दिया ना तो वो आपका प्लेजरिज्म में 0 आ जाएगा। अगर यहाँ सोचा कि हमें नेट से हम कॉपी करके भर देंगे असाइनमेंट, तो ये देख लो कि हम लोग उसको उसमें डालेंगे जरूरी। क्या आप बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर का नाम भूल रहा है, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर था प्लेजरिज्म पकड़ने का, टर्निटिव में। हाँ टर्निटिन में, तो टर्निटिन में अगर आपका 30% से ज्यादा कोटेशन आ गई तो फिर आपका 0 जाएगा उसमें। मैम एक बार फिर से करते हैं पोल। नहीं मैम यही पोल ठीक है। पोल तो हो गया, ये तो मतलब नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग लिखें अपनी तरफ से, अच्छी बात है लिखना चाहते हो। मैम इंग्लिश किया हुआ है मैम, उसमें प्लेजरिज्म का होता है मैम, उसमें असाइनमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे प्लेजरिज्म का तो काफी होता है मैम। मैंने एम इंग्लिश किया हुआ है। हाँ तो वहाँ पे तो प्लेजरिज्म का बहुत होता है, मतलब असाइनमेंट्स बहुत होते थे वहाँ पे ना। नहीं क्योंकि बच्चे तो ये सोचते हैं हम दोनों नेट से इधर नकल उकल मार के कर देंगे, तो हम तो उनको सारे टर्निटिन में डाल देंगे। हाँ तो जो 30% से आगे वो वैसे ही आप लोगों का वो हो जाएगा। वो अपने वर्डिंग्स में लिखेंगे मैम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ अपने वर्ड्स में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अपने आप देखो तो अच्छी बात है ना, लिखना भी आएगा। मैम कोई भी टॉपिक यूज कर सकते, हम कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। हाँ वो भी आप लिख के दोगे। हाँ सेम टॉपिक 2 लोगों को नहीं मिलेगा, वो भी लिस्ट बनाएंगे फिर हमें। मगर अभी ये सब कल तक होल्ड कर लो कि बाकी लोग, बाकी टीचर्स के क्लासेस में भी क्या डिस्कशंस हुए हैं, उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, और मेजॉरिटी गई। मैम मेमोरियल में प्रॉब्लम है मैम, मेमोरियल नहीं आता बिल्कुल भी बनाना, तो मैम वो कैसे करना है? तो मैं क्या लिखूं आपके लिए, लिख दूं मैं आपका मेमोरियल? नहीं मैम वो नहीं मैम वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सा उधर फॉर्मेट उसका वही वाला करना है जो केसमेट में होता है, कोर्ट वाला फॉर्मेट। तो कोर्ट में और भी चीजें एडिशन होती है ना, इसलिए बोल रहा था। कोर्ट में मेमोरियल होता ही नहीं है। नहीं मैम वो जब केस सबमिशन होती है, फाइलिंग होती है, तो वो फाइलिंग वाला कंसेप्ट तो नहीं ना करना मैम। नहीं तो फाइलिंग का जो पहला पेज तो फाइलिंग वाला ही होता है ना, जैसे फाइलिंग में होता है पहला पेज, उसमें भी बनेगा। सिर्फ फर्स्ट पेज वो होगा ना मैम? हाँ पहला पेज वैसे ही होगा। मैंने आज पीपीटी भी शेयर कर दी है, जो कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो अटेंडेंस का ये ठीक नहीं चल रहा है, आज फिर इसने सिर्फ 11 लोगों की अटेंडेंस लगाई है। ऐसा करेंगे अभी क्योंकि सारी क्लास है 68 है, तो आप लोग अपना पी भी लिख दो, प्रेजेंस लगाओ, अपनी अटेंडेंस लगाओ। कोई सिस्टम
कुछ दिन ठीक चल रहा, 2-3 दिन से इसका तो सिस्टम ही नहीं ले रहा है अटेंडेंस वाला। चलिए आपने लगा दी तो अच्छी हो गई। ओके, शैल वी कम बैक टू कोर्ट मैनर्स। मैम जी मैम, मेरा एक डाउट था मेमोरियल से, क्या अभी पूछ सकती हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल। मैम जो कल वाली क्लास की जो डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर रिस्पोंडेंट को ऑब्जेक्शन होता है ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट करेगा और फिर उसके लिए आर्ग्यूमेंट देगा, तो क्या उसके लिए वो सेपरेट इशू बनाएगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में ही उस चीज को डालेगा? दैट्स एन इम्पोर्टेंट वन। इसमें ना आप लोगों का थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें हमें तो पता नहीं वो दूसरी साइड कौन सा जुरिडिक्शन लगा रही है, तो आप लोग अपनी तरफ से लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप अपनी तरफ से सोचो कि कौन से उसमें जो कौन से केस में, कौन से सेक्शन में, कौन से प्रोविजन में दूसरी साइड कोर्ट जा सकती है। अगर आप रिस्पोंडेंट की साइड में हो तो आप बोलो कि वी एक्सेप्ट जुरिसडिक्शन अंडर सच एंड सच सेक्शन, ठीक है। मेमोरियल में आप वो लिखोगे। फिर जब आपका मूड कोर्ट होगा, जब एक्चुअल एग्जाम होगा, तो उसमें आपके जो आपसे जो पहले जो पेटिशनर है, आप उसका मेमो देखोगे। उसमें हम एक्सचेंज ऑफ मेमो कहते हैं। आप एक दूसरे के मेमोज देख सकते हो। तो आप दूसरी साइड का मेमो देखोगे और उसमें देखोगे कि उन्होंने सेम सेक्शन जो आपने लिखा था वही लिया है कि उन्होंने डिफरेंट सेक्शन लिया है। अगर डिफरेंट लिया है तो आप फिर ओरल आर्ग्यूमेंट करोगे कि नहीं, हम ये जो डिफरेंट तो इसमें मानते हैं, इसमें नहीं मानते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त में करने का इसके लिए। मैम मेमोरियल जो एक्सचेंज होगा सडनली होगा या फिर एक दिन पहले होगा? क्योंकि हमें उसका क्योंकि एक दिन पहले तो जिनके नाम लिखे हुए हैं ना उनमें से, क्योंकि इसमें थोड़ा एक और जो दूसरा इशू आ रहा है मुझे शेड्यूल करने में, 5 लोग करने से जरूरी बात है कि एक जना एक ही साइड का आ पाता है। तो उसमें जो नेक्स्ट डे में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, वो लोग एक्सचेंज करेंगे मेमोरियल। जो सीक्वेंस में बने हैं ना, उसी सीक्वेंस में दो के सीक्वेंस में एक्सचेंज करेंगे। समझ आ गया? यस मैम, वो तो मैम मेमोरियल एक्सचेंज तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब हम मेमोरियल अपना बनाएंगे तो उस वक्त हम स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन वाले पार्ट में लेकर चलेंगे, देन अगर हमें कुछ डिफरेंट मिलता है फिर हम आर्ग्यू करेंगे। हाँ, आप अपना स्टेटमेंट बना के रखोगे कि आपके हिसाब से फला सेक्शन में दूसरा बंदा जा सकता था। अगर जो बंदा गया है वो डिफरेंट सेक्शन में गया है तो आप पिछले दिन अप्लाई करोगे माइंड पे, आपने ऑब्जेक्ट करना है कि उसमें भी आपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो फिर जब हम एक दिन पहले जो मेमोरियल एक्सचेंज होगा तो हमें मेमोरियल में तो हम कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ हमारा जो आर्गुमेंट होगा जो हम सेपरेट रखेंगे ऑब्जेक्शन करने के बाद जो हाँ, सिर्फ ओरल में करेंगे जी। ओके ठीक है। तो फिर उस चीज को मेमोरियल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ओरल आर्गुमेंट देंगे उस पे। हाँ, मगर आपका पेज तो रहेगा ना जुरिसडिक्शन वाला, तो आप भी अप्लाई करोगे माइंड के किस सेक्शन में ये केस जाना चाहिए था उसमें। अगर उसमें जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें नहीं जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो आप अपना प्रोविजन मेंशन करोगे कि आपके हिसाब से अगर कोर्ट का जुरिसडिक्शन इसमें इन्वोक हुआ है तो यू एक्सेप्ट द जुरिसडिक्शन। मेमोरियल में नहीं होगा तो जो आर्गुमेंट हम देंगे तो एक्सेप्टेबल इन फ्रंट ऑफ कोर्ट होगा ना, कि अगर जो जुरिसडिक्शन ओनली स्पेशल जुरिसडिक्शन पे अगर बात कर रहे हैं तो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ, क्योंकि आपको ऑन द फीट तो फिर भी सोचना पड़ेगा ना पिछले दिन से, क्योंकि हो सकता है कोई उन्होंने आर्ग्यूमेंट लिया हो जो आपने एड्रेस ना किया हो। यस मैम। देखो ये सारी एक्सरसाइज ना हम ट्रस्ट बेसिस पे चलाते हैं। हम बिलीव करते हैं कि आप लोग सब ऑनेस्ट हो, क्योंकि हमें किसी क्लास में किसी बच्चों ने पूछा कि जी अगर बच्चों ने आपस में मिल के किया और या किसी ने 10 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू किया, जो इंटरव्यू वाला है उसमें 10 मिनट का टाइम है, और किसी ने कम किया तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, और किसी ने जो है बारंबार रिपीट कर करके बेटर कर करके दिया। मैंने कहा देखो भाई, हम लोग तो इस विश्वास पे चलते हैं कि बच्चे सारे लर्निंग के लिए आए हैं और ये लोग बेईमानी नहीं करेंगे। तो उसके बाद में जो लोग बेईमानी करेंगे वो उनकी तकलीफ है, हमारी तकलीफ नहीं है उसमें।
हम नहीं सोचते कि आप में से कोई भी जना डिसऑनेस्ट है। हम सोचते हैं कि और इंटेग्रिटी तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ लॉयरिंग। अगर आप में इंटेग्रिटी नहीं है, यू गॉट नो बिजनेस बीइंग आइदर अ लॉयर और अ जज और अ रिसर्चर और अ टीचर। जो भी आप प्रोफेशन की बात करते हो, इंटेग्रिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम आपके सर पे बैठ के नहीं देखने वाले हैं कि आपने क्या किया। हम कह रहे हैं कि अब एक दिन पहले मेमोस एक्सचेंज होंगे, तो आप लोगों के ही ऊपर है कि आप इस बात को ऑनेस्टली फॉलो करो कि पिछले दिन ही मेमोरियल शेयर करो एक दूसरे के साथ। डू नॉट डू दिस अर्लियर। ओके मैम, वन क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स, कल का जो रिकॉर्डिंग होगा क्या आपने वो लिंक पे डाल दिया? क्योंकि मैं कल क्लास में नहीं था, तो मैं रिकॉर्डिंग देख के बाकी जान जाऊंगा क्या क्या। डाल दिया। मैम ये मेमोरियल एक्सचेंज का जो आपने बताया था मैम, एक बार दोबारा से बता दीजिए प्लीज। जिस दिन आपका लिस्टेड है ना, सपोज आपका लिस्टेड है 17 को और दूसरा बंदा आपके जो ऑपोजिट साइड में है उसका 16 को या 18 को लिस्टेड है। क्योंकि कुछ लोगों का होगा कि उनका पार्टनर जो जो दो की टीम्स हैं उसमें आपका पार्टनर अगले दिन या पिछले दिन लिस्टेड है। तो जिसका भी अर्लीस्ट है उससे एक दिन पहले उसका मेमोरियल शेयर हो जाएगा दूसरे के साथ। तो आप लोग जो जमा करोगे ना, आप एक दूसरे को भेज दोगे, ईमेल कर दोगे एक दूसरे को कि ये मेरा मेमोरियल रहा, आप बोलोगे ये मेरा मेमोरियल रहा। तो दो के ग्रुप्स में आपने एक्सचेंज करने हैं मेमोरियल। इसमें कुछ लोगों को ये दिक्कत आएगी क्योंकि कुछ हम में से स्टूडेंट्स हैं जो आ ही नहीं रहे, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हम एग्जाम देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं उस टीम के मुताबिक। तो जिनका ऐसे आप लोग एक तो ये एक्सचेंज कर सकते हो, अपनी लिस्टें देख लो कि जो आपके पेयर में जो ऑपोजिशन में स्टूडेंट आ रहा है वो उसको ईमेल भेजो और पता करो कि वो मेमोरियल जमा कर रहा है कि नहीं जमा कर रहा है। तो दो के ग्रुप्स में ये आप अपना कंफर्म कर लो साइड। हाँ जी मैम, ये पेयर कैसे पता लगेगा हमारे मतलब ऑपोजिशन में? मैम इसमें तो खाली लिस्ट है ना, तो उसमें देखो सब में जो दो के जोड़े में नाम है, पिटिशनर रिस्पोंडेंट। तो जब अगर आप रिस्पोंडेंट हो तो अपने से ऊपर वाला नाम देख लो। ओके मैम। अगर आप पिटिशनर हो तो अपने से नीचे वाला नाम देख लो। ओके मैम। ठीक है। और मैम अगर सेम ग्रुप सेम डेट को लिस्टेड हो तो कैसे होगा? पिछले दिन क्योंकि सब कंफ्यूजन उन लोगों का हो रहा है क्योंकि जैसे अभी एक दो लोग हैं जिनका आधा लोग 5 लोग हैं ना, तो 5 में तो पेयर नहीं बनता। तो उनमें से एक का एक दिन इंटरव्यू वो होगा वोट कोर्ट और उसके ऑपोजिशन में दूसरे दिन होगा। ओके। तो उस केस में जिसका पहले दिन है ना, पिटिशनर का जिस दिन है उससे एक दिन पहले शेयर हो जाएंगे। सपोज एक का 15 को है, दूसरे का 16 को है, तो मेमोरियल शेयरिंग 14 को कर लेंगे। ओके। और मैम जो मोट कोर्ट का आर्गुमेंट होगा वो सिर्फ हम 3 लोग रहेंगे जैसे मैं रहा, मेरा अपोजिशन रहा और जज रहे, ये रहेंगे इन फ्रंट ऑफ क्लास होगा? इन फ्रंट ऑफ क्लास मैंने लिखा है, सबने अटेंड करना है सारा। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ बिल्कुल पब्लिक है, ये ओपन कोर्ट है। आप लोग सीखोगे ना एक दूसरे से करने के ऊपर में भी, तो उसमें ज्यादा लर्निंग होती है। सिर्फ एग्जाम नहीं है, पूरा का पूरा जो फोकस इस कोर्स का है लर्निंग पे है। तो जब आप अपने ही केस में किसी दूसरे को भी आर्ग्यू करते देखोगे या दूसरे केस में भी जिसमें आपने काम नहीं किया उनको सुनोगे, तो आपकी नॉलेज एक्सपेंशन होगी बोथ इन कम्युनिकेशन एज वेल एज रिसर्च। कि उन्होंने क्या क्या तरह की चीजें जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्जर्व करो कि उन्होंने क्या क्या सोर्स मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या तरह की इंफॉर्मेशन। सिर्फ लॉ पे ही आर्ग्यूमेंट किया है कि लॉ से बियॉन्ड भी आर्ग्यूमेंट किया है? कि हमने कहा ना लीगल मटेरियल्स होते हैं, नॉन लीगल मटेरियल्स भी इस्तेमाल करने होते हैं लॉयर्स को। तो आपको रेंज पता चलेगी कि किस बच्चे ने, आपका अपनी असेसमेंट बढ़ेगी कि आपके हिसाब से किसका कम्युनिकेशन बेहतर था, किस सेंस में बेहतर था। क्योंकि अभी तक तो कुछ ही लोगों ने कम्युनिकेशन किया है, एक क्लास के अलावा तो मेजॉरिटी क्लास तो चुप रही है। हमें पता नहीं है कि आपको कितना तो बोलना आता है,
कितना आपने लर्न किया है इस कोर्स में। ये ओकेजन है जिससे आप हर स्टूडेंट को देखोगे और ऑब्जर्व करोगे कि आपके हिसाब से कम्युनिकेशन में इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या चीज डिफरेंटली कर सकते थे, तो अपनी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट करोगे उस बात को सोच करके। इसलिए आप लोगों के लिए एडवाइजेबल है कि आप सब लोग सारे क्लासेस अटेंड करो, जिससे आप हर स्टूडेंट से लर्न कर सको। सब टीचर से नहीं लर्न करना होता है, अब आपके प्योर लर्निंग का टाइम है, तो हर अपने साथी से भी आप लर्न करोगे। मैम जो मूड कोर्ट का आर्गुमेंट होता है वो तो टोटल इंग्लिश में होता है, लेकिन जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा क्या उससे वो सिर्फ इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा? आप आर्ग्यूमेंट भी हिंदी में करना चाहते हो तो मैं परमिशन देती हूँ आपको, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जबकि नहीं होता है, पर क्योंकि हमारा एग्जाम है और एग्जाम में हमें हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी भाषा में हम, किसकी आवाज आ रही है, जो हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से आप किसी में भी आर्ग्यूमेंट करना, लिखत में भी मेमोरियल भी आप हिंदी में देना चाहते हो आप दे सकते हो, पर जो लोग हिंदी में मेमोरियल सबमिट करेंगे आप लोग पीडीएफ फाइल में सबमिट करो, क्योंकि अभी एक आध लोगों ने जो केस एनालिसिस हिंदी में सबमिट किया और उसमें जो है मेरे पास फॉन्ट नहीं थे तो मैं वो पढ़ नहीं सकी, तो अगर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लोगे, वर्ड फाइल जो हिंदी में आपने बनाई है उसको आप पीडीएफ में दे दोगे तो मैं उसको हिंदी में पढ़ पाऊंगी। तो आप हिंदी में आर्ग्यूमेंट कर सकते हो और मॉक ट्रायल में भी और मूड कोर्ट में भी। मैम जब आर्गुमेंट होता है कई बार ऐसा होगा कि इंग्लिश में हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे लाइन होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम इंग्लिश में कभी कभी माइंड से निकल जाता है कि हमें बोलना क्या है, तो उस समय क्या हम हिंदी उस समय इंग्लिश में हम कर रहे हैं, लेकिन क्या उस समय एक दो लाइन जो अभी कभी होता है हिंदी में यूज कर सकते हैं? थैंक यू मैम। लैंग्वेज को बैरियर मत बनाओ, नॉलेज पे और स्किल पे फोकस। हम चाहते हैं आप लोग इंग्लिश सीखो, मगर वो तो ओवरनाइट नहीं ना आती है। मैम वो मेमोरियल जो सबमिट होगा वो हैंड रिटन होगा या फिर टाइप्ड होगा? टाइप्ड। ओके मैम। Ma'am, there is a small question I would like to ask. जी। Ma'am, the moot court problems that were being allotted alphabetically named. So some students, for example, me and Prabhat have got moot court problem too, which is related to IPR. But we haven't had IPR as our subjects because it was optional. So that is something we wanted you to know. Yes, ma'am. Even we don't have the resources or we don't know how to prepare for that IPR question. आप मुझे ऐसा करो, जिसको प्रॉब्लम है कि आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो प्रॉब्लम लिखी मिली है आपको, वो मुझे लिस्ट बना के भेजो। आई विल पुट इट इन द कमिटी टुडे। थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ, तो मुझे आज शाम से पहले, हमारी 8 बजे मीटिंग है, उससे पहले लिस्ट आ जानी चाहिए मेरे पास। मैम मॉक ट्रायल और मूड में आप ही जज रहेंगे या पैनल बैठेगा कोई और? नहीं, मैं ही होंगी, सब मेरे ऊपर ही है। ओके मैम। प्रॉब्लम है क्या इस बात से? नहीं मैम, नहीं पैनल नहीं, मैं पैनल आ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैनल भी ला नहीं मैम, ये ज्यादा बढ़िया है, आप रहोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, क्योंकि देखो ना एक लेवल का कम्युनिकेशन होता है क्लास के साथ में, तो इसलिए हम लोग ही करेंगे। हेलो मैम। हाँ जी मैंने केस एनालिसिस चार्ट मेल किया था आपको, गूगल क्लासरूम पे फाइल अटैच करने में दिक्कत आ रही है, वो बार-बार कर रहा हूँ, फेल हो जा रहा था। कौन बोल रहा है? आलोक। हाँ आलोक, अब तो मैं ले ही नहीं रही हूँ, अगर अब तो वो उसका बंद हो चुका, वो कब का पुराने जमाने की बात हो गई। आई विल नॉट टेक एनीथिंग नाउ। टाइम से पहले अपलोड किया था गूगल क्लासरूम पे, तभी भी नहीं हो पाया था, मैंने मेल कर दिया था आपको। हाँ नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ था नहीं हुआ था, मगर जब दुनिया का हो गया तो आप भी फिर से कोशिश करिए, कुछ गलत हो रहा होगा, क्योंकि वो उन्होंने भी, रणधीर जी ने भी बोला था कि उनका भी अटैचमेंट अपलोड नहीं हो रहा था, तो आप लोग डिफरेंट टाइम पे कोशिश करो, हो जाता है तो अपलोड। इतने सारे स्टूडेंट्स का सीआर से भी बात की इस मामले में, उससे मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया, तो उन्होंने भी कहा कि ट्राई करते रहना, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दो। जी हाँ, नहीं ऐसे कोई खास मुश्किल आएगी तो आप मुझे ईमेल में लिख के भेजोगे कि आप कर रहे हो, नहीं हो रहा है, पर नहीं तो मुझे ये सारी वही चाहिए। आपके साथ मेल पता, मैंने कल आपको दोबारा मेल करके बताया भी कि दिक्कतें हो रही है, इसलिए मैंने अपलोड किया था आपको, टाइम के साथ मैंने बताया आपको। अरे नहीं, कल क्या भेजा आपने मुझे? मैम केस एनालिसिस चार्ट तो मैंने ड्यू डेट से पहले भेजा था, कल मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि मैंने यहाँ क्यों भेजा था, क्योंकि मुझे गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने में दिक्कतें आ रही थी, ये मैंने कल आपको लिख के भेजा है। तो मैं देखती हूँ मेरे पास आपके तो कल के क्या मेल है।
आलोक 151411 से मेल होगा मैम। आलोक कौन सी मेल पे भेजा बच्चे? ये मैम जिससे आप गूगल क्लासरूम पे अनाउंस करती हो। नहीं है, कोई मेल ही नहीं है आपकी। आलोक कुमार कमेंटेड है। मैम आई हैव सबमिटेड माय रोल प्ले एज क्लाइंट विया योर मेल आईडी, ये लिखा आपने तो। कल के तारीख में और कुछ नहीं है मेरे पास आपके पास से। तो आप किस मेल पे भेज रहे हो मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पे नहीं आई आपकी मेल मेरे पास। वन क्वेश्चन जी, जैसे आपने बोला कि अगर जो आपने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है मूड कोड का जो प्रॉब्लम मिला है उसका सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जैसे मैं अभी कॉपीराइट अभी इस ईयर था लेकिन वो आईपीआर तो लिए नहीं तो कॉपीराइट तो पढ़ नहीं सकते, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम चेंज होगा या फिर कोई ऐसा होगा कि उसके आर्गुमेंट मतलब उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, प्रॉब्लम चेंज होके या किसी और तरीके से? आप क्या सोचते हो क्या करना चाहिए हमें? मैम प्रॉब्लम चेंज करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, अगर जो नहीं भी पढ़े हैं तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे होते हैं कि उसके बारे में हम कुछ जानते हैं, कई ऐसे वो अगर जो उसके बारे में जैसे कॉपीराइट अभी मैंने उस बारे में देखा ही नहीं है, एक फॉर एग्जांपल अगर मेरा कॉपीराइट का मैंने इस बारे में देखा ही नहीं है, अरे तो सोल्यूशन फिर मुझे बताओ ना। कॉपीराइट में अब आपने सवाल पूछा तो सोल्यूशन बताओ, आपकी तरफ से क्या सोल्यूशन होना चाहिए? एग्जाम नहीं देंगे ये तो हो नहीं सकता। जैसे कि नहीं ये सोल्यूशन तो है ही नहीं कभी भी। हाँ तो फिर तो मूड कोड का मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो चूज करने का फिर वो होना चाहिए ना कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रखे हैं उस सब उनमें से सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो चूज कर सके, बाकी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने वो कोर्स नहीं पढ़ा है सिर्फ आपका, तब हम देखेंगे क्या करना है। कोर्स पढ़ा है तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि हमने तो फैमिली देना है, नहीं हमने तो ये देना है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। आपने कोर्स वो नहीं पढ़ा है और वो वैसे भी अभी आपके लॉयर बनोगे तो बोलोगे कि हमें ये कोर्स पढ़ाए तो हम तो आपका केस नहीं लेंगे, पर क्योंकि अभी कोविड चल रहा है आप लोग लाइब्रेरी जा नहीं सकते हो तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि क्या किया जाए। इसीलिए ना क्योंकि कॉपीराइट की बुक नहीं है हम लोगों के पास अभी, तो अभी और ऑनलाइन सोर्स इतने ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए बात कर रही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल बात भी नहीं करती सब्जेक्ट पे कि कोई सा भी केस है पढ़ाई करिए। अब हमारे यहाँ मोड कोर्ट में कंपटीशन में पूछते हो कि ये हमारे कोर्स का हिस्सा था कि नहीं था? सरोगेसी पे मोड कोर्ट कंपटीशन था, किसी ने नहीं पूछा कि नहीं हम तो पार्टिसिपेट करेंगे, हमें तो सरोगेसी पढ़ाते नहीं है। So that's not an argument acceptable. Because of the extraordinary situation we are in, we will consider कि मैं कमेटी में रख दूंगी, बाकी में भी तो बाकी सेक्शन में भी तो इशू उठा होगा ना। बाकी टीचर्स क्या कहते हैं इस बारे में वो मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगी कल, पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए किस चीज को चेंज, किस चीज को है कि हमारे को ये कोर्स हमने नहीं पढ़ा है। हेलो मैम, हुआ है जो आपको अलर्ट हुआ है, अगर वो आपने कोर्स नहीं पढ़ा है तो वो आप मुझे लिख के चिट्ठी अमित के पास लिस्ट बनवा दीजिए और वो मुझे भेज देंगे शाम तक। मुझे लिस्ट is it compulsory to send our name? What if we want to give it a try? No, अगर आपको डिस्कम्फर्ट है तभी ना, हमें कोई भी दिक्कत थोड़ी है। आपको चेंज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर अगर आप यू आर सो अनकंफर्टेबल क्योंकि एग्जाम है, यू डू नॉट वांट टू बी अनफेयर टू यू। और अगर सीधी बात है लाइब्रेरी खुली होती तो बिल्कुल भी कोई चॉइसेस नहीं थे, जो केस मिल गया वो केस मिल गया। तो क्योंकि लाइब्रेरी ओपन नहीं है और लिमिटेड एक्सेस है अभी हमारे पास में, तो आई एम रेडी टू पुट इट इन द कमिटी। हेलो मैम। हाँ जी। आई हैव वन मोर डाउट, मे आई आस्क? जी मैम, एज पर यस्टरडेज क्लास डिस्कशन उसमें था कि जो हम SLV फाइल करते हैं तो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, मतलब जब हम केस SLP फाइल करेंगे तो पहले बेंच हमारा हियर करेगी, देन डिसाइड करेगी कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स या मतलब एक्चुअल हियरिंग होगी, मतलब हमारा मैटर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो वो जो पहले हियरिंग होगी ये डिसाइड करने के लिए कि मैटर हम लेंगे या नहीं लेंगे, और फिर बाद में जो एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनमें क्या डिफरेंस होता है?
देखो जो SLP में सिर्फ ये होता है कि देयर इज अ प्रिमा फेसाई रॉन्ग बीइंग डन। जो सुप्रीम कोर्ट में उनका एडमिशन डेज होते हैं, तो मुश्किल से आधे घंटे में वो 250 एप्लीकेशन देख लेते हैं SLPs, और मेजोरिटी तो कूड़े में तभी के तभी चली जाती हैं। तो दैट्स द हियरिंग। उसमें सिर्फ आपको बेसिक 2 मिनट में जज को कन्विंस करना है कि इट इज वर्दी ऑफ द जज टू लिसन टू दिस। तो मैम आर्गुमेंट तो ऑन उस मेरिट हियरिंग होता है, में मेरिट तो ऑन मेरिट होता है। ओके, उस हियरिंग में ज्यूरिसडिक्शन की बात उठती है, मतलब जो सब पहले होता है वहां पर क्वेश्चंस होते हैं ज्यूरिसडिक्शन? नहीं नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं होगा ना, उसमें तो होगा कि नहीं यू शुड हियर दिस पिटिशन बिकॉज इट इज रेजिंग सच एन इम्पोर्टेंट इश्यू ऑफ लॉ दैट यू शुड एक्सेप्ट दिस। सोशल जस्टिस या जो कुछ भी आप आर्ग्यू कर रहे हो, इट हैज टू बी फोर्सफुल दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड बी मोटिवेटेड टू एक्सेप्ट योर कि ठीक है हम इसको मैटर को देख लेते हैं। तो ना कभी नोटिस इशू होते हैं में नहीं होंगे। अब जो ट्रिब्यूनल जस्टिस हमें केस बता रही थी, तो उसमें कोर्ट में तीन लोग उसमें कन्विक्ट हुए थे, तो तीनों ने डाली SLP, 2 की रिजेक्ट हो गई। तीसरा जो कहता कि मैं तो बच्चा था उस डेट की ऑफेंस में, उसमें नोटिस इशू हो गए, तो 1 ही एडमिट हुई, 2 की नहीं हुई एडमिट। उसके बाद में नोटिस इशू होकर के फिर हुआ कि हम इसकी एज डिटरमिन कराओ, फिर पता लग कि हाँ वो बच्चा ही था, तो उसको 55 ईयर ओल्ड को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया। तो दैट हैपेंड बिकॉज आफ्टर द पिटिशन वाज एडमिटेड। जब इशू नोटिस हो गया इसका मतलब एडमिट हो गई, तो उसके बाद में फिर मेरिट में एग्जामिन होगा मैटर। तो मैम जो हम मेमोरियल बना के जो हम बात, सपोज हमारे केस में SLP फाइल की गई है और फिर जो हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो लेटर वाली स्टेज मतलब उसे हम मानेंगे ना, मतलब कि हम मेरिट पे जब डिस्कस करेंगे। आपके केस में SLP एडमिट हो चुकी है, अगर आप SLP फाइल कर रहे हो तो। हाँ ओके, थैंक यू मैम। हाँ, आप उसे एजम्पशन पे चलोगी, आपकी SLP एडमिट हो चुकी है। मैम वैसे एक सवाल था जी। कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जैसे डबल बेंच है और उस पे हमने SLP डाली और वो मतलब कैंसिल हो गई, या फिर तो मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो चाहिए था वो मिला नहीं उसमें। जैसे आपने कहा ना कि वो 2 मिनट का टाइम देते हैं और उसके बाद वो कूड़े में चली जाती है, तो एक तरीके से कूड़े में चली गई अगर वो SLP, तो उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना उसमें रिव्यू नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। मुझे वो भी ख्याल पता नहीं है ठीक से कि SLP का जो हियरिंग होती है उसमें चीफ जस्टिस तो होता ही है, बाकी लोग भी बैठते हैं कि 2-3 लोग बैठते हैं कि एक ही जना बैठता है, मगर सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि क्या होता है, मगर उसमें रिव्यू नहीं होता कि भाई अपनी डिसमिस हो गई तो हम इसके खिलाफ हैं, रिव्यू चल रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। अभी कोर्ट मैनेज का तो टाइम बचा नहीं है हमारे पास। चलो छोटी सी बात पूछ लेती हूँ कोर्ट मैनेज में। कोर्ट रूम में जो 2 पार्टीज होती हैं वो किधर खड़ी होती हैं? अभी वर्चुअल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक्चुअल फिजिकल कोर्ट रूम में कोर्ट के लेफ्ट में कौन खड़ा होगा? पेटिशनर की प्लेंटिफ? नहीं, मतलब क्योंकि डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट साइड्स हैं। तो मॉक ट्रायल में जो मॉक ट्रायल नहीं, मतलब जो ट्रायल स्टेज में मैटर है, जो फर्स्ट कोर्ट में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कौन सा साइड में कौन खड़ा होता है, और हाई कोर्ट में कौन खड़ा होता है किस साइड में, और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी साइड में खड़े होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्लेंटिफ लेफ्ट में होता है। और मैम ये लेफ्ट जज की साइड से है कि सामने से है, किधर से? ये तो आप बताओगे ना, मैं तो पूछ रही हूँ सवाल। तो रेज्यूम करते हैं जज हमारे सामने बैठा है, तो मैम हम अपने देखेंगे लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट साइड में। जैसे मैं जज के सामने तो जज की राइट हो गई ना, जज की राइट हो गई। हाँ जज के राइट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में क्या है? हाई कोर्ट में नहीं पता मैम, मुझे डिस्ट्रिक्ट का है। किसी को पता है हाई कोर्ट में क्या है? और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या है? हाई कोर्ट में इसका ऑपोजिट है, हाई कोर्ट में इसका ऑपोजिट है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर ऐसा ही है। The party which is approaching the court on the right of the judge. High court में on the left of the judge. Okay.
You also know Ma'am, that in the actual courtroom, when you go, you have to bow. चाहे जज देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है. When you leave the court, you again bow, because you are not bowing to this individual. You are bowing to the, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान जी देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं हमें पता नहीं है, मगर हम एज्यूम करते हैं कि वो देख रहे हैं क्योंकि वो पोजीशन है. ये जो हम ऑनर करते हैं उस सीट को ऑनर करते हैं जिस सीट पे वो ह्यूमन बीइंग बैठा है. सो यू हैव टू ऑलवेज बो टू द कोर्ट व्हेन यू एंटर एंड आल्सो बो टू द कोर्ट व्हेन यू लीव द कोर्ट, irrespective of whether the judge has got your eye or not. और वैसे भी ना जो जज बैठते हैं वो, जैसे हम लोग भी देखो सामने कुछ देखते हैं तो अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं. कॉन्शियसली तुम यहाँ देख रहे हैं पर हमें यहाँ का भी विजन होता है, इधर का भी विजन होता है. सो कोर्ट को भी पता चलता है कि आप कितना कर्टियसली आ जा रहे हो. नहीं, certainly in the courtroom you do not talk among yourselves. बैठने की भी एटिकेट्स है. हम लोग एक दफा कर्नाटका में कोर्ट में गए, हमें पता नहीं था, तो हम और काफी सारे फॉरेनर कलीग्स भी थे, किसी कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब गए थे तो कोर्ट विजिट करने गए. तो वो जैसे हम लोग बैठ जाते हैं ना कैजुअली पाँव पे पाँव चढ़ा करके क्लासरूम में बैठते हैं, कोर्ट रूम में दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन अ गुड मैनर. You should not be crossing your legs sitting in the courtroom. You do not argue with the judge. बैक भी नहीं दिखाते इवन. हाँ, नॉर्मली वैसे होता है कि आप वो करके आप पीछे निकल जाते हो. मगर the other thing, when you are presenting your argument, you should not argue with the judge. अगर जज ने कुछ पूछा है, then you should stop talking what you were talking about. Suppose आप एक आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे थे, स्पेशली मोट कोर्ट में काफी हो, हम लोग ये टेस्ट भी करते हैं आपका कि आप आर्गुमेंट 1 पे हो, तो हमें लगा कि नहीं इसको आर्गुमेंट 1 आते हैं, चलो खुद सेकंड पूछ लेते हैं. लगा नहीं आप बताओ उसके बारे में क्या कहते हो. यू कैन नॉट से लेट मी फिनिश माय फर्स्ट आर्गुमेंट देन आई विल गो एंड टेल यू अबाउट द सेकंड आर्गुमेंट. तो जज ने ऑलरेडी मेकअप कर लिया माइंड ऑन द वन. Now they want to hear, उनका डाउट सेकंड पे है, so they want to have more focus on the second और थर्ड जो भी आर्गुमेंट जो भी आस्पेक्ट पूछना चाहते हैं. So you should be very quick in responding कि ठीक है, I'll tell you about that also. After the judge said, if you want to come back to the first one, you can return to that, but respond to the queries by the court. कोर्ट क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, because judge get very irritated if they have to repeat their questions. If by chance you've not understood जिस तरह से जज ने बोला उनको समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो. You usually do not say I disagree with you my lord. अच्छा my lord तो कहते ही नहीं है, ये भी तो my honor आप कह सकते हो, sir और madam कह सकते हो, because my lord एक जमाने में statutory भी requirement थी, now that's been done away with. अभी भी मोट कोर्ट में बहुत बच्चे आदतन my lord lordship करते रहते हैं, but that's not required anymore and that's actually frowned upon by some judges, जो especially जो modern outlook के judges हैं, quality में विश्वास करते हैं, पूरे ये traditional जो है ना hierarchy में विश्वास नहीं करते हैं. They do not like them to be called as lordship. जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस मुरलीधर हैं, बहुत सारे जजेस हैं जिन्होंने दिल्ली के जजमेंट बताए, बाकी का मुझे पता नहीं है, जो बहुत ज्यादा क्लियर है कि नो दे शुड नॉट बी रेफर्ड टू एज लॉर्डशिप, क्योंकि एक कॉलोनियल प्रथा थी जहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था, लॉर्ड्स होते थे, कॉमन्स होते थे. सो यू वांट टू डू अवे विद दैट. सो इन कर्टेसीज कैटेगरीज योर ऑनर इज सफिशिएंट. एंड जब अगर इंटरनेशनल कोर्ट है तो वहां पे बोलते हैं योर एक्सीलेंसी, वहां लॉर्डशिप नहीं कहते. तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ what is the appropriate way to address the court. And we always refer to the court, not to the judge concerned, that you are addressing the court. Certainly wahan pe judge baitha hai court mein, but we are addressing the court. So it doesn't matter whether it is an ex-judge or Y-judge, it is a court that you are addressing. And the honor of the court has to be upheld. तो जब हम contempt of court की बात करते हैं, तो contempt of individual judge नहीं होता है. It is the institution of the court, an institution of the judiciary that we are dealing with. So these are some of the things you must keep track of and be aware of. Suppose आप present कर रहे हो और judge फाइलें देख रहा है, वो अपना कुछ material वहाँ पे पढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? Will you continue speaking?
जज ने उठा के फाइल देखनी शुरू कर दी. Ma'am, we'll wait for the judge to look at us and then we'll proceed. तो क्या कहोगे, एग्जैक्टली क्या कहोगे? देखो जज साहब मेरी तरफ देखिए. नहीं मैम, अगर हम चुप हो जाएंगे तो खुद ही देखेंगे ना कि चुप क्यों हो गया सामने वाला बंदा. हाँ, या तो चुप हो जाओगे. हाँ, और यह पूछ सकते हो दैट शुड आई कंटिन्यू, बट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द जज. व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही आस्किंग. तो या जो उनके एक्सप्रेशन से आपको नहीं पता चलेगा कि वो अभी क्या सोच रहे हैं कि हम. अच्छा, एक और जो नॉर्मल हमारे बच्चे गलत करते हैं मूड कोर्ट्स में, मतलब एक आर्ग्यूमेंट से दूसरे पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इफ योर लॉर्डशिप इज सेटिस्फाइड on my first issue, I will can I move to the second one? Judge is never supposed to give you an answer to that question because उसमें आप दो सवाल पूछ रहे हो. एक सवाल है are you satisfied? सेकंड सवाल है can I raise the second one? वो सेकंड को तो हाँ कहेगा कि हाँ सेकंड में मूव करो, बट इफ इट सेज yes और you तुम अज्यूम करते हो कि उसने फर्स्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया. So that's a wrong way to frame the question. You should only say, so this is my submission on the first issue. Now I would want to, or I seek your permission to move to the second issue. In fact, वो भी जरूरत होती नहीं है. ये जबरदस्ती बच्चे करना शुरू किया, टाइम वेस्ट है. जितना आप करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है. जब हम मूड कोर्ट कर रहे हैं, one of the components of our evaluation is that we will ask you a question. कुछ भी सवाल पूछेंगे हम आपके जो प्रेजेंटेशन है उसको लेकर के, आपका सब्जेक्ट मैटर उसको लेकर के. तो जिस वजह से जो आपने तो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन प्लान किया है, हमने सवाल पूछ लिया और उसका जवाब में आपके 2-3 मिनट निकल गए, तो यू विल नॉट हैव टाइम टू फिनिश योर आर्ग्यूमेंट. डू नॉट वरी ऑन दैट फ्रंट, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम. एग्जाम में हम आपको ये नहीं कि आप फुल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो. हम देखना चाह रहे हैं कि आप कितनी थिंकिंग ऑन द फीट कर सकते हो, कितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपने रिसर्च में क्या क्या कोटेशन दिया है. तो दोज आर द एस्पेक्ट्स. कंप्लीटिंग योर फुल आर्ग्यूमेंट इज नॉट द रिक्वायरमेंट, इज नॉट द क्राइटेरिया बाय विच वी जज यू. तो आपके 10 मिनट खत्म हो गए, आपका आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं हुआ, डजंट मैटर. डू नॉट फील अनकंफर्टेबल कि अरे मेरा तो फिर क्या होता है जब टाइम कम रह जाता है तो बच्चे वो स्पीड में सुपर फास्ट एक्सप्रेस में स्पीड पे चालू हो जाते हैं. डोंट डू दैट. Stay there, be calm. Doesn't matter if not finished, but whatever you have finished those 10 minutes should be convincing, should be persuasive, should be reflecting thinking on the feet, should reflect some research work that you have done. तो इस पे प्रेशर में मत आना कि अरे मैडम ने सवाल पूछ लिया और तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया. And if you actually can now proceed, so then you should be able to, your preparation should be that you can speak for 10 minutes without interruption and complete your argument. You can also speak for 5 minutes and still complete your argument. तो उसमें सम करना, जैसे हमारा 2 पार्ट है ना, उसमें समरी ऑफ प्लीडिंग्स है और डिटेल प्लीडिंग्स है. तो अगर किसी पार्ट में आपको लगता है टाइम कम बचा है तो आप समरी प्लीडिंग को, जो समरी और जो फुल प्लीडिंग है उसके बीच का इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने सपोज 5 केस रेफर किए हैं अपने प्लीडिंग में, जरूरी नहीं कि 5 केस रेफर किए जाएं. यू कैन से दैट आई हैव आल्सो कोटेड 4 more cases which have held similarly. आपके 5 केस का वो कवर हो गए. So to learn, जो आपने लिखा है आपने सिर्फ वही नहीं बोलना है, उसको आप कैसे within the time frame बोलोगे. That's what we are looking for. We are not asking you to read your pleadings. Okay? So you have to be very, you have to think on your feet. जैसे पहले सवाल पूछा तो पता नहीं आपको कि मैं क्या सवाल पूछने वाली हूँ, क्या सवाल पूछ लूंगी, और मैं भी पहले से सेट नहीं करके आती कि मैंने ये सवाल पूछने. जब आप लोग बोलते हो तो कुछ मुझे क्वेश्चन दिमाग में उठता है तो वो मैं पूछ लेती हूँ. And that is also usually to make you think about it. So you may have an answer, you may not have an answer. You do not have an answer, you might say that, no, well, I'm not aware of it, but I will look into this matter. So that's okay. But usually the questions would be which you should have looked at beforehand. तो इसलिए सवाल जब पूछूंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है और टाइम के लिए प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है. एंड वी आर नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स कि आपका आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं हुआ 10 मिनट में. There might be case that when I do not ask a question,
तो आपको ये भी डिस्कम्फर्ट कर रही तो सवाल ही नहीं पूछा। यूजुअली पूछूंगी, सबसे पूछूंगी, बिकॉज दैट्स ऑल द वन ऑफ द थिंग्स वी डू लुक एट। बट कई दफा सवाल कोई आता ही नहीं, आपने इतने जिस तरह से प्रेजेंट किया उसमें वो सवाल नहीं आ रहा है कुछ पूछने के लिए, सो दैट मे बी एक्सेप्शनल देयर, सो डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट, बट बी प्रिपेयर्ड। और कोई सवाल बचा? मैम जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर में नहीं आता है तो उसको बेस्ट तरीका क्या होगा रिस्पॉन्ड करने का? हाँ, यही कहता कि ना, यू might say that no, I have not thought about it from this angle, or I'm not aware, or I will look into this matter again. I've not just of now I'm not aware of। ना, हमें भी पता है कि आप लोग तो बच्चे ही हो ना, अभी तो शुरू ही कर रहे हो अपना कैरियर, सो यू वुड, हमें इतने सालों में सारे लॉ नहीं आते, तो नेचुरली यू विल ऑल्सो नॉट नो, बट द अदर स्टूडेंट्स who have yet to follow that up, जैसे हमने सेकंड कैंडिडेट को सवाल पूछा, और वो सेम कैंडिडेट वही सेम सवाल हमने 6th कैंडिडेट को पूछा और उसको भी नहीं आया, दैट मीन्स वो बच्चा सुन नहीं रहा था, उसने सर्च नहीं किया। क्योंकि जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो वो सवाल हम किसी से भी पूछ सकते थे ना उस वाले टॉपिक पे, तो जिसको सवाल का जवाब नहीं आता दे शुड लुक अप। इस जो बच्चा बोल रहा है उसका तो टाइम नहीं है देखने का, पर बाकी के पास तो टाइम है। If I ask the same question again और बच्चा फिर से कि मुझे पता नहीं है, इसका मतलब वो तो अटेंशन, the student was not paying attention in the previous day या previous time, उसको तो अभी बीच में 40 मिनट का टाइम था या 20 मिनट का टाइम था, they could have looked up। अगर आपने उसमें अपनी, क्योंकि आपको भी, अगर इसलिए कहते हूँ आप लोग प्रेजेंट रहो और अटेंटिव रहो, कि अगर जो सवाल मैंने ये स्टूडेंट से पूछा इसको जवाब नहीं आता, आपको आता है उसका जवाब नहीं आता, तो आप तो सर्च करो, उसका तो परफॉर्मेंस चल रहा है तो वो तो सर्च इस वक्त में नहीं कर सकता है। नॉर्मली मूड कोर्ट में तो जब होता है ना, जब कॉम्पिटिशन का 30 मिनट का टाइम रहता है तो रिसर्चर उसके बीच में सर्च करके उसको जवाब बता देते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। पर अगर आपकी परफॉर्मेंस 20 मिनट बाद है तो आपको उतने देर में तैयारी कर लेनी चाहिए कि सवाल का क्या जवाब है। तो सब्सिक्वेंट के पास ये जवाब नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता, अरे अभी तो परसों कल तो ये सवाल पूछा था, कल से आज तक भी सर्च नहीं करके आए। तो बी अटेंटिव, पे अटेंशन। और आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ जी मैं मॉक टाइप लिस्ट में मेरा नाम 2 बार आया है। और किसका आया पता चल गया? ग्रुप 2 में और ग्रुप 18 में मैम। क्या नाम, कौन बोल रहा है? अनीश कुमार। अनीश, ठीक है, मैं कहती हूँ एक का नाम 2 दफा लगा है। नहीं मैम, पहले भी आया था, तब आपने एक बार 17 में था, फिर मैंने आपको मेल किया था, अभी 18 में आ गया। नहीं तो अब आपके मैं चेक ही कर लेती। ग्रुप 2 में है मैम, जो फॉर्म किया था मैंने अमित को, जो नाम सेंड किया था। अनीश जी मैम। नहीं तो ग्रुप 2 कहाँ है यहाँ? तो अनीश का नाम तो, ये कौन सी लिस्ट है? ये है मॉक ग्रुप्स ना जो देर से आए हैं। हाँ मैम, उसमें आपने 18 ग्रुप में नाम ऐड किया हुआ है मेरा। नहीं, 18 में कौन सा नाम है आपका? है मैम, लास्ट में देखो 3rd पे। सर्च करके देखती हूँ इंग्लिश कितनी है। आपका पहले वाली लिस्ट में तो नाम नहीं है ना, 1 to 15 में? मैम उसमें ग्रुप 2 में है मेरा नाम। ग्रुप 2 में? जी। ग्रुप 2 अमित, आशीष, अनीश, ओके। तो आपने चूज कर लिया था पहले ना? जी मैम, यस मैम, मैं ग्रुप तो 2 में ठीक है, राजीव आप के ग्रुप साथ। 2 में, आप 2 में रहोगे। ठीक तो है। आपका मैं वहां से, हाँ, आपको लेट ग्रुप में नहीं होना चाहिए आपका नाम, जी तो मैम। वो मैं आपका वहां से निकाल दूंगी। हाँ, फिर अब थैंक यू। नंबर सही हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आपका सेकंड ग्रुप में नहीं नाम आना चाहिए था, जो मतलब जो सेकंड लिस्ट निकाली थी उसमें आपका नाम नहीं होना चाहिए था। यस मैम। ठीक है, बढ़िया हो गया, 78 का अकाउंट हो गया। तो ठीक है, फिर कल हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड आर्ग्यूमेंट्स।
Ma'am, I have a question. जी. Ma'am, do we have to submit compendium also along with the memorial? No. You should have it ready with you in case we want you to read something or find something. और इसमें आपकी मटेरियल में लिखा है ना, पेज लिमिट वगैरह सब लिखी हुई है. Follow those limitations. जब आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करते हो ना, you should it will be easier for us to put them in order. डॉक्यूमेंट में आप जैसे मेमोरियल लिख रहे हो, तो आपका सबसे पहले होना चाहिए क्लास रोल नंबर, फिर आप लिखोगे मेमो, और फिर लिखोगे जिस भी साइड में आप हो, पेटिशनर हो के रिस्पॉन्डेंट हो. 3 इंफॉर्मेशन आपके मेमोरियल के टाइटल में जाएगी जो सेव करते हो जिस फाइल को. फाइल सेव करना ठीक से सीख लो. तो एवरीबडी यू शुड पुट फर्स्ट योर क्लास रोल नंबर, फुल क्लास रोल नंबर, सिर्फ 3 डिजिट्स मत लिखना क्योंकि इसमें काफी सारी सीरीज चल रही हैं. सो फुल क्लास रोल नंबर, देन यू विल राइट मेमो, और फिर या तो लिखोगे पी, पेटिशनर पूरा ही लिख दो, पेटिशनर रिस्पॉन्डेंट, जो भी आपका सीक्वेंस चलती है, पेटिशनर रिस्पॉन्डेंट है या आप एप्लीकेंट, जो भी उसमें कुछ लिखे हुए हैं, स्टेट है तो स्टेट लिख दोगे. जो भी आपका टाइटल रखा है ना आपकी लिस्ट में, आप वो वाला टाइटल लिखोगे अपना मेमो लिखने के बाद में. सेम पैटर्न आप फॉलो करोगे जब आप केस एनालिसिस जमा कर रहे हो. तो अपना रोल नंबर पहले लिखोगे क्लास का, और फिर लिखोगे केस एनालिसिस. सबकी फाइल का नाम यही होना चाहिए, विद योर रोल नंबर इन द फ्रंट, केस एनालिसिस. जब आप इंटरव्यू क्वेश्चनर भर रहे हो, अगेन योर रोल नंबर और क्वेश्चनर. और क्या जमा कर रहे हो आप लोग? केस कमेंट. अगेन फर्स्ट राइट डाउन योर रोल नंबर एंड सेव केस कमेंट. सारी फाइल आपने ऐसे सेव करके मुझे भेजनी है. फर्स्ट द फाइल नेम शुड स्टार्ट विद योर रोल नंबर, and then it should say whether it's a memorial, whether it's a case comment, whether it's a questionnaire. और क्या जमा कर रहे हो? केस एनालिसिस. सो जो भी डॉक्यूमेंट है आपके रोल नंबर के साथ में, वो आपने उसके फाइल के नाम में वो लिखना है. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बारे में? कई दफा मैं शुरू से कह रही हूँ कि आप अपने ईमेल में ऐसा टाइटल लिखो, आप लोग फॉलो नहीं करते. ज्यादातर करने लगे हो, अगर कुछ लोग फिर भी नहीं कर रहे हो, बट एवरीबडी हैज टू फॉलो दिस. आपकी फाइल नेम में क्लियरली आना चाहिए रोल नंबर पहले, फिर किस बारे में फाइल है, क्वेश्चनर है, केस एनालिसिस है, केस कमेंट है, मेमोरियल है. तो मेमो लिखेंगे मेमोरियल के लिए, केस कमेंट में केस कमेंट लिखेंगे, क्वेश्चनर में क्वेश्चनर लिखेंगे, केस एनालिसिस में केस एनालिसिस लिखेंगे. और ये सब एंट्रीज आपने देनी है मुझे ऑन द डैशबोर्ड क्लास वर्क के. उसमें असाइनमेंट में अभी भेज दूंगी आप लोगों को इनविटेशन, और डेडलाइन साथ में लगा दूंगी. एनी डॉक्यूमेंट विच कम्स आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड. So the document has to reach the dashboard before the deadline. उसमें सिस्टम में डेडलाइन लिखी रहती है, वो हमें सारा बता देता है कि ये आफ्टर द डेडलाइन जमा हुए हैं. मैं डेडलाइन के बाद का डॉक्यूमेंट कोई भी इवैल्यूएट नहीं करूंगी. ठीक है? मैम क्लास रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर? नहीं, क्लास रोल नंबर. मैडम डेडलाइन थोड़ी सी ज्यादा रखना. अभी तो इतनी सारी लंबी डेडलाइन है. डेडलाइन आपकी सबसे पहले कौन सी है? देखो आप डेडलाइन देखो क्या है. पहली डेडलाइन कौन सी है? पहली डेडलाइन आपकी है जमा करने की कुछ भी 10 नवंबर. आज क्या तारीख है? 20 दिन का टाइम है आपके पास. 20 दिन से ज्यादा तो हम किसी को भी नहीं देते. मैम बीच में एग्जाम भी है मॉक ट्रायल का.
हाँ, तो जिन लोगों का शुरू में है वो पहले, जिनका शुरू में है वो बाद में भर लेंगे। रोज का एग्जाम सबका रोज थोड़ी है, तो 5 बच्चों का एग्जाम है, बाकी क्या कर रहे हैं? जिसका पहले एग्जाम है वो बाद में मेमोरियल तैयार करे, जिसका बाद में एग्जाम है वो पहले मेमोरियल तैयार करे। तो 20 दिन तो मिल रहे हैं ना सबको। उसके बाद में आपका जिस दिन क्लाइंट इंटरव्यू का एग्जाम है 11 को, वो फॉर्म्स दोनों सेम डे भरे जाएंगे, क्वेश्चनर एंड केस एनालिसिस। तो वो आपको शाम तक उसी दिन भर के देना होगा। वो तो ताजा ताजा जितना करोगे उसमें जो वो है, इनफैक्ट जो क्वेश्चनर है वो हाथ के हाथ भरना है आपने। जैसे क्वेश्चनर खत्म होगा, दोनों टीम्स का खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको 1 घंटा मिलेगा, उसमें बीच में आप क्वेश्चनर भरोगे। केस एनालिसिस पहले भी दे सकते हो, मगर वो आउटर लिमिट है। इसकी डेडलाइन दी है, केस एनालिसिस नहीं दिया, अभी मैं दे दूंगी। उसके बाद में फिर आपका राइटिंग सबमिशन है। असाइनमेंट क्विज, अगर असाइनमेंट हुआ तो 3 दिसंबर, कितने दिन है आज की तारीख में? केस कमेंट के लिए 7 दिसंबर, 1.5 महीना 1.25 महीना मिल रहा है आपको। इससे ज्यादा कितनी लंबी डेडलाइन चाहिए? या मुझे बता दो किसने कहा डेडलाइन ज्यादा लंबी दे दो? इससे ज्यादा लंबी डेडलाइन क्या करोगे, भूल जाओगे? तो डेडलाइन बहुत क्लियर है और बहुत दूर दूर है, बस एक डेडलाइन मुझे आपको देनी है केस एनालिसिस वाली। तो केस एनालिसिस की तारीख भी मैं इंटरव्यू वाली तारीख दे दूंगी, तब तक दे देनी, चाहे पहले दे दो चाहे उसी दिन दे दो। केस एनालिसिस की तारीख भी आप 11 मान के चलो, जिस दिन आपका एग्जाम है। प्रॉब्लम तो सबके पास है ही, तो उसमें केस एनालिसिस भी 11 तक के लिए, फिर भी आपको 21 दिन है उसमें भी। मैम तो एक क्वेश्चन और है जी। मैम, ये जो आपने मॉक ट्रायल का जो एलोकेशन वाला जो आपने ये एक्सेल शीट भेजी है मैम, इसमें फर्स्ट राउंड में लिखा है लॉयर 1A विल चीफ एग्जामिन 1B फॉलोड बाय क्रॉस ऑफ 1B बाय 2A एंड 1B विल चीफ एग्जामिन 1A फॉलोड बाय क्रॉस ऑफ 1B बाय 2B। तो मैम इसमें दोनों बार 1B का ही क्रॉस हो रहा है। ऐसा लिखा मैंने क्या? यस मैम। गलत लिखा होगा, देखती हूँ। इसमें है, देखो थर्ड राउंड, पहला राउंड है 1A चीफ एग्जामिन 1B फॉलोड बाय क्रॉस बाय 1B ऑफ 1A बाय 2A। ठीक है, ये तो सिंपल है। फिर IB 1B विल चीफ एग्जामिन 1A, जो पहला पार्टी का जो दूसरा बंदा है वो पहले वाले को करेगा, फॉलोड बाय XB ऑफ X बाय X ऑफ 1B। तो 1A होएगा यहाँ पे, यहाँ यही कह रहे हो ना? यस मैम। फॉलोड बाय क्रॉस ऑफ 1A, क्योंकि जिसका एग्जामिन इन चीफ हुआ है उसी का क्रॉस होएगा। हाँ तो सही है, ये मैं करेक्ट कर देती हूँ, फिर से भेज दूंगी ये दोबारा से करके। तो 1A फिर सेकेंड राउंड में, ठीक है, 2A से 2B और 2B का। यस मैम, बाकी सब तो सही था, बस इसी का कंफ्यूजन था। नहीं, ये गलत लिखा है, 1A होना चाहिए था यहाँ पे। जिसका जिसका चीफ होगा उसी का क्रॉस होगा। तो चीफ एग्जामिन 2B क्रॉस ऑफ 2B, फिर चीफ एग्जामिन 2A क्रॉस ऑफ 2A। हाँ ठीक है, अब सही हो गया, सही किया। तो ठीक है, दिस आई सेंड द करेक्शन। ध्यान से पढ़ा किसी ने, समझ आ गया ना इसमें क्या करना है? आपके दोनों साइड में एक दूसरे को इंटरव्यू करना है, जो एग्जामिनर चीफ करना है, और दूसरी साइड के लोगों ने क्रॉस करना है। फिर अपनी साइड में जिन्होंने पहले क्रॉस किया था वो अपनी साइड को एग्जामिन करेंगे, और जो पहली साइड में जिन्होंने एग्जामिन किया था वो क्रॉस करेंगे।
All right. All right. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So कल building arguments पे, हाँ, last class on building argument and then your presentation of the moot argument. कौन present कर रहा है moot argument? Let's have some volunteers. Do we have any volunteers? I will present. Harsh and Pawan? Harshit and Pawan? Yes, madam. Okay, great. As a starting, बाकी लोग भी तैयार करेंगे, देखेंगे क्या क्या इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिए जो लिए जा सकते थे और कम्युनिकेशन पे देंगे. और हर्ष एंड पवन, आई सजेस्ट आप ना फोकस करके पहले बताना कि अगर आपको फीडबैक चाहिए, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन यू वांट अ फीडबैक ऑन. आप इंटोनेशन पे बात करना चाहते हो, आप कोहेरेंस पे बात करना, तो हमारा फीडबैक किस पे चाहते हो. आइडेंटिफाई योरसेल्फ, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट प्रेजेंटेशन. कल उसमें है ना प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स का भी एक सेक्शन है, तो बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स. सो जो चैप्टर है हमारा इसके ऊपर में इन्स वाले में, कौन से डॉक्यूमेंट में वी हैव, वो रीडिंग है हमारी, उस पे पढ़ लेंगे. जो उसमें लिखा ना प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स में व्हाट आर द एस्पेक्ट्स यू शुड कीप ट्रैक ऑफ, जिसमें कि आप पढ़ेंगे नहीं, आई कांटेक्ट बिठाएंगे, शफलिंग नहीं होनी चाहिए पेपर्स की, वो सब लिखा है उसमें. सो एवरीबडी लुक एट दैट रीडिंग. अभी मैं बता देती हूँ क्या पेज नंबर्स वगैरह हैं. आई थिंक हिस्लॉप वाले में है. You should read from I think 120 onwards. Structure, outline, witness need to be observed, sketching the picture online and setting the agenda for the trial. Then argue the case, structure, pertinent and expression and delivery, audibility, presentation, manners. ये सारे pages जो हिस्लॉप वाला आर्टिकल है उसमें प्रेजेंटेशन वाला जो बॉडी लैंग्वेज, गुड मैनर्स, some random points, ये सब पढ़ लेंगे and try to incorporate the points which are given in this reading in your presentation. 120 onwards. Okay. Okay. Yes, तो परसों तक तैयारी करेंगे. हाँ, so look, everybody read those pages again if you have not read it. If you have not read them so far, read them. If you have read them, read them again, so that it will become alive for you. That how to make a presentation, what factors to be taken to have consideration, have in your mind. कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. All it is there in that reading. So, all right, see you tomorrow. So tomorrow we're going to look at two things. One is building arguments, and the second very small component also will be what are the key points. So somebody should make a presentation, key points in presentation of arguments.
Any volunteer for tomorrow? No? No volunteer? Then we will not have a presentation. I'm not going to talk about it. I will only talk about building arguments. So see you tomorrow.